So we will first quickly revise basics of refrigerator. If you remember, हमने last session में we have seen what is a refrigerator, what is the working principle of a refrigerator. Just to quickly revise, अगर आपको याद होगा तो refrigerator या air conditioner या heat pump, they are opposite of heat engines. In case of heat engine, हम क्या करते हैं? We extract, मतलब we absorb the heat from a region of higher temperature, जिसको हम source बोलते हैं या फिर hot reservoir. Part of the heat absorbed is converted to mechanical work and the remaining part is ejected to the sink. Sink is a body or a region which is at lower temperature. So process याद रखना, absorption of heat, conversion into work and rejection of the remaining heat. ये तीन steps involved थे. And if you remember, ये cyclic process है. तो the working substance goes back to its initial state. जिस state से start किया था वहीं पे जाता है. Refrigerator या फिर if you remember heat pumps, they are basically opposite process of heat engine. In case of refrigerator or air conditioners or heat pumps, we extract heat from a region of lower temperature by doing work on the system. Working substance पे work होगा, working substance will absorb heat from a region of lower temperature and the heat is rejected to higher temperature, right? Then we have seen in the last session basic structure block diagram of a refrigerator. तो याद होना चाहिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए what is refrigeration. So refrigeration is a process of cooling a space or substance of a system and to maintain its temperature below the ambient temperature. For example, हम जो एयर कंडीशनर यूज करते हैं या फिर जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हो घर में, उसमें क्या होता है? इन केस ऑफ एयर कंडीशनर, ये जो रूम है, दिस इज अ स्पेस, इसका टेम्परेचर हमको कम रखना है मतलब कूलिंग करना है कंपेयर टू आउटसाइड. सो रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ स्पेस. इस केस में वी आर कूलिंग दिस स्पेस विच इज हॉल, विच इज रूम. और इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर आप किसको कूल करते हो? सब्सटेंस को. जैसे उसके अंदर कुछ फ्रूट रख दिए या फिर लेट अस से कोल्ड ड्रिंक रख दिया, लेट अस से और कुछ होगा. So in case of refrigerator, you cool the substance inside the system. So refrigeration is a process of cooling a space or substance of a system and to maintain it below its ambient temperature. Ambient मतलब surrounding temperature से नीचे हमको उसका temperature maintain करना है. It is called as artificial cooling. And you must remember, ये artificial cooling करने के लिए रेफ्रिजरेटर जो यूज करते हो उसके तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. एक है एक्सपांशन वॉल, एक है कंप्रेसर एंड वन इज दिस ट्यूब थ्रू व्हिच रेफ्रिजरेंट फ्लोज. तो रेफ्रिजरेंट जिस ट्यूब से फ्लो होता है, दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट. तो रेफ्रिजरेशन, व्हाट हैपेंस इन अ रेफ्रिजरेटर? इट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम कोल्ड रीजन एंड रिलीजेस इट टू हॉटर रीजन. हॉटर रीजन मतलब हमारे केस में कौन है? Atmosphere, right? And thus it further cools the colder region. And you have three important parts of it. एक है expansion valve, एक है compressor, एक है cooling tube. और आपको मैंने बताया था कूलिंग ट्यूब का जो पार्ट है रेफ्रिजरेटर के अंदर है, अंदर मतलब जिस चेम्बर को आप कूल कर रहे हो उसको क्या बोलते हो? कूलिंग कॉइल. द पार्ट ऑफ cooling tube which is inside the space inside the colder region is called as cooling coil, right? And always remember, हमें याद रखना, जिस स्पेस को फर्दर कूल डाउन करना है उसका टेम्परेचर लोअर होता है, उसका प्रेशर भी लोअर होता है. और जो आउटसाइड रीजन है विच इज लाइक सिंक टू अस, हॉटर रीजन का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ऑल्सो हायर. यहाँ तक क्लियर, राइट? देन हमारा अल्टीमेट एम क्या था? हमारा अल्टीमेट एम था टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्डर रीजन एंड रिलीज इट टू द हॉटर रीजन. तो मैंने आपको बताया था कि बिकॉज रेफ्रिजरेटर इज अ हीट इंजन विच ऑपरेट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, राइट? तो इसके भी 4 स्टेप्स है, जस्ट लाइक 3 स्टेप्स ऑफ हीट इंजन.
एक्चुअली वहां पे भी 4 स्टेप्स, अगर याद होगा आपको, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड अगेन आइसोथर्मल। तो वहां पे भी 4 स्टेप्स थे, यहाँ पे भी 4 स्टेप्स है। सिर्फ ऑर्डर जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, दैट्स इट। तो 4 स्टेप्स जो है वी वांट टू सी व्हाट आर दोस 4 स्टेप्स अगेन। तो दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम वापस से रिवाइज करेंगे इन डिटेल। तो इफ यू रिमेंबर, रेफ्रिजरेटर का जो वर्किंग है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। और वो 4 स्टेप पे जाने से पहले वी विल ड्रॉ energy flow diagram of refrigerator. Do you remember what was energy flow diagram of refrigerator? एनर्जी फ्लो डायग्राम याद है क्या? लास्ट सेशन में हमारा हुआ था। हमारे पास ये एक हॉट रिजर्वायर है जिसको आप हॉट रीजन बोलते हो, एंड देन वी हैव अ कोल्ड रिजर्वायर जिसको हम लोग कोल्ड रीजन बोलते हैं। हमको हीट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है? कोल्ड रीजन से। आपको पता है नेचुरली हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर। तो हमको अगर यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करना है तो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, हमको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्क डन किस पे होगा? ऑन द सिस्टम होगा कि बाय द सिस्टम होगा? ऑन द सिस्टम होगा कि बाय द सिस्टम होगा? ऑन द सिस्टम। क्यों ऑन द सिस्टम? बिकॉज हमको कोल्डर रीजन को और कोल्ड बनाना है। रिमेंबर, दिस इज कोल्डर रीजन, दिस इज कोल्डर रीजन। और कोल्डर रीजन का टेम्परेचर नॉर्मली हम डिनोट करते हैं TC से। दिस इज हॉटर रीजन, और हॉटर रीजन का टेम्परेचर हम डिनोट करते हैं, इफ यू रिमेंबर, TH से। Naturally, heat cannot flow from lower temperature region to higher temperature region on its own. अपने आप हीट फ्लो नहीं होता, उल्टा हो सकता है। Heat can flow from higher temperature region to lower temperature region on its own, but heat cannot flow from lower temperature to higher temperature on its own. तो हमको यहाँ पे जबरदस्ती का हीट एक्सट्रैक्शन करना है, और जबरदस्ती का हीट एक्सट्रैक्शन अगर करना है तो देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम कौन है? वर्किंग सब्सटेंस, राइट। देन ये वर्क डन हुआ, वर्क डन होने की वजह से हीट एक्सट्रैक्शन हुआ। हीट कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ? कोल्डर रीजन से। कितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ? QC। वर्क कितना किया? W। और ये वर्क प्लस हीट एक्सट्रैक्टेड इज बेसिकली रिलीज्ड इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब यहाँ पे हॉटर रीजन। तो टोटल हीट इज extracted plus work done. This total heat is basically released to the surroundings. QH is the amount of heat released. तो ये था आपका एनर्जी फ्लो डायग्राम। और एनर्जी फ्लो डायग्राम बहुत काम का है, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे, इफ यू रिमेम्बर, हीट इंजन का एफिशिएंसी हमने डिफाइन किया था। डू यू रिमेम्बर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन? आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट हीट। It is the ratio of output in the form of work to that of input in the form of heat, right? मतलब कितने हीट इनपुट के लिए हमको कितना आउटपुट मिला वर्क में, उसका जो रेशो था, that was called as efficiency. जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगा उतना ही इंजन अच्छा होता है, राइट। तो वी एक्सपेक्ट कि हमको एफिशिएंसी मिलना चाहिए कितना? 1। तो एफिशिएंसी की वैल्यू 1 होना, इसका मतलब जितना इनपुट हीट दिया था उतना का उतना हमको आउटपुट में मिला। तो सिमिलरली रेफ्रिजरेटर के केस में हम एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते, वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या उसको क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, या उसको Q वैल्यू भी बोलते हैं। तो याद रखो, हम जब क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करेंगे या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करेंगे तो ये डायग्राम हमको लगने वाला है। अब इस डायग्राम का रेलेवेंस क्या है वो भी समझ लो। सी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव, मतलब वर्क डन इज लेस देन 0। देन हीट इज एक्सट्रैक्टेड। हीट इज एक्सट्रैक्टेड मतलब हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस, मतलब QC इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हीट वर्किंग सब्सटेंस ने कोल्डर रीजन से एब्जॉर्ब किया। हीट एब्जॉर्ब बाय कन्वेंशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, और QH अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ। अगर हीट रिजेक्ट हुआ इसका मतलब हीट सिस्टम ने रिलीज किया, एंड हीट रिलीज इज ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव, तो QH इज लेस देन 0। तो ये कन्वेंशन याद रखना। वर्क डन ऑन द सिस्टम था, इसलिए वर्क डन इज नेगेटिव। हीट वाज एक्सट्रैक्टेड, कितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ? QC, मतलब हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस, मतलब QC विल बी पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0।
Lastly, QH is the amount of heat rejected by the system to the environment. इसलिए QH will be negative. Good. So let us now see which are the 4 steps. The process of refrigeration involves 4 steps. हमने last lecture में we have already seen these 4 steps. अभी आज सिर्फ हमको डिटेल देखना है और रिपीट करना है कि ये 4 स्टेप्स कौन से थे. तो 2 स्टेप्स है एक्सपांशन के, 2 स्टेप्स है कंप्रेशन के. एक्सपांशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन. पहले स्टेप में जो एक्सपांशन था वो कौन सा एक्सपांशन है? एडियाबैटिक एक्सपांशन है. दूसरा कौन सा है? आइसोबारिक एक्सपांशन है. तीसरा है एडियाबैटिक कंप्रेशन और चौथा क्या है? आइसोबारिक कंप्रेशन. तो जो पहला स्टेप है, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज एडियाबैटिक एक्सपांशन. और हर एक स्टेप को एकदम अच्छे से समझ लेना. क्यों एडियाबैटिक एक्सपांशन करना है, क्यों आइसोबारिक एक्सपांशन चाहिए, क्यों एडियाबैटिक कंप्रेशन होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सबसे पहले जो रेफ्रिजरेंट था किसमें? ट्यूब्स में. व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट कॉपी दिस डायग्राम, पुट इट ऑन दैट पेज सो दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. तो हमारे पास रिमेंबर व्हाट वी हैव इज, यहाँ पे हमारे पास जो कूलिंग ट्यूब है उसमें रेफ्रिजरेंट इज फ्लोइंग. और रेफ्रिजरेंट 2 अलग अलग फेज में है, एक है लिक्विड, एक है गैस. आउटसाइड द चेम्बर, जिस चेम्बर को, जिस कंपार्टमेंट को, जिस स्पेस को कूल करना है उसके बाहर रेफ्रिजरेंट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, राइट. तो सबसे पहले उसका फेज चेंज करना पड़ेगा बिकॉज व्हेन इट गोज इनसाइड इट इज सपोज्ड टू बी इन द फॉर्म ऑफ गैस. तो लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय रिलीजिंग द प्रेशर. प्रेशर रिलीज करना मतलब प्रेशर डिक्रीज करना. अब प्रेशर डिक्रीज जब होगा, when pressure decreases molecules of the liquid they go away. molecule of the liquid away जाना मतलब क्या होना? एक्सपांशन होना. और याद रखना ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो एक्सपांशन हम करवा रहे हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट शुड नॉट बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग. ऐसा क्यों? क्योंकि रिमेंबर आपको क्या करना है, आपको एक रीजन है या रेफ्रिजरेटर के अंदर का चेंबर है उसको कूल डाउन करना है. नेचुरली हीट फ्लोज फ्रॉम higher temperature body to a lower temperature body. Imagine ये जो रेफ्रिजरेटर का चेंबर था इसके अंदर फ्रूट्स रखे हुए हैं. फॉर एग्जांपल 10 डिग्री उनका टेम्परेचर है, मुझे उसको फर्दर कूल डाउन करना है, 5 डिग्री पे लाना है. तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होना चाहिए? फ्रॉम दोज फ्रूट्स मतलब दोज सब्सटेंसेस टू द रेफ्रिजरेंट. वो कब होगा? जब रेफ्रिजरेंट इज एट लोअर टेम्परेचर. तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? हम एडियाबैटिक एक्सपांशन करवाते हैं. एडियाबैटिक एक्सपांशन करवाना मतलब गैस को एक्सपांड होने देना विदाउट एक्सचेंजिंग हीट विद द सराउंडिंग्स. क्योंकि गैस एक्सपांड हो रहा है. एक्सपांशन मतलब वर्क इज डन बाय द गैस, बाय द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब द सिस्टम गैस इज लूजिंग इट्स internal energy. When the system loses its energy, it cools down. अगर ये प्रोसेस में सराउंडिंग से हीट अंदर आया तो वापस से वो रेफ्रिजरेंट हीट अप हो जाएगा. तो उसको हीट होने देना नहीं है. तो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू अलाउ इट टू एक्सपांड बाय डूइंग वर्क. तो वर्क कौन करेगा? सिस्टम करेगा. लेकिन जब सिस्टम वर्क करता है तो इंटरनल एनर्जी कम होता है. अगर इंटरनल एनर्जी कम होगा तो गैस का क्या होगा? कूलिंग होगा. और इस प्रोसेस में हीट बाहर से अंदर आना चाहिए क्या? इट शुड नॉट कम. तो पहला स्टेप था एडियाबैटिक एक्सपांशन. और वो कैसे करते हो? बाय जस्ट अलाउइंग द रेफ्रिजरेंट टू पास थ्रू नोजल. नोजल मतलब ये जो एक्सपांशन बॉल है ना, इसको आप थोड़ा सा ओपन कर देते हो. इसको ओपन करना मतलब इसका प्रेशर कम करना. प्रेशर कम करना मतलब एक्सपांशन होगा. तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप, रेफ्रिजरेंट कहाँ से पास होना चाहिए? एक्सपांशन वॉल से. इस एक्सपांशन वॉल को क्या बोलते हैं? नोजल. सुना होगा ना वर्ड नोजल. घर में भी सिलेंडर का नोजल होता है, इफ यू नो, राइट. तो एडियाबैटिक एक्सपांशन, तो इनिशियली the refrigerant
the refrigerant which is in the form of liquid, which is in the form of liquid, is allowed to pass through, is allowed to pass through nozzle, and expand adiabatically. इतना लिखना सफिशिएंट है। अब एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या होता है वो आपको पता है, which means the refrigerant cools down, right, and it is converted to gas. It means the substance या फिर the system cools down and also क्योंकि pressure कम हो गया, and also it changes its phase to gaseous phase. क्लियर यहाँ तक? अब इसके आगे के स्टेप में, इसके अगले स्टेप में क्या होगा? आइसोबारिक एक्सपांशन, विच मीन्स, इसका मतलब ये है कि अब जो रेफ्रिजरेंट था, इट गोज इनसाइड द चेम्बर विच इज टू बी कूल्ड, और वो गैसियस स्टेट में है, और उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है। सराउंडिंग मतलब इस चेम्बर के अंदर जो सब्सटेंस है उससे कम है, राइट। अब एक चीज याद रखो, हमने पहले से मेंशन करके रखा है, दिस इज लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रीजन। व्हेन यू से लो प्रेशर, इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर ऑफ लो वैल्यू, राइट, ये याद रखना, कांस्टेंट प्रेशर। तो जो रेफ्रिजरेंट अंदर गया, इट वाज गैस, रेफ्रिजरेंट वाज इन द फॉर्म ऑफ गैस, एंड दैट गैस वाज कूल गैस। इसके लिए यहाँ पे हमने पहले मेंशन कर दिया, द सिस्टम कूल्स डाउन, करेक्ट। तो अब क्या होगा? अब जो सराउंडिंग में चेंबर के अंदर जो सब्सटेंस थे, वहां से हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि जो सिस्टम के अंदर, सॉरी सराउंडिंग में, मतलब चेंबर के अंदर जो सब्सटेंस है, लाइक फ्रूट्स, लाइक कोल्ड ड्रिंक, दे आर एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू रेफ्रिजरेंट। व्हेन आई से हायर टेम्परेचर कंपेयर टू रेफ्रिजरेंट, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, वो सब्सटेंस 10 डिग्री पे था, रेफ्रिजरेंट 5 डिग्री पे है, so heat will be transferred from substance of the chamber to the refrigerant. इस केस में refrigerant is absorbing heat. अगर refrigerant heat absorb करता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका? रेफ्रिजरेंट का। अगर टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। टेम्परेचर बढ़ना मतलब वॉल्यूम का भी बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना मतलब एक्सपांशन होना। तो जो सेकेंड स्टेप था, सेकेंड स्टेप में क्या है? एक्सपांशन है, लेकिन कौन सा है? आइसोबारिक, सिंस द प्रेशर इज कांस्टेंट। तो सेकेंड स्टेप इज आइसोबारिक एक्सपांशन। तो नाउ इन दिस स्टेप, now the refrigerant in the form of gas, enters into the colder region, right? Then heat is transferred कहाँ से? From the substance of the chamber, from substances of the chamber to the refrigerant, Hence, the temperature of the refrigerant increases at constant pressure. एक स्टेप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और याद रखो, आई विल नॉट टॉलरेट एट ऑल। ध्यान यहाँ पे, मतलब यहाँ पे
So therefore, temperature of the refrigerant increases at constant pressure. Therefore, this is isobaric expansion. अब मैं डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें सारे बेसिक लॉज देखे थे। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। तो दिस इज आइसोबारिक एक्सपांशन। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2 ऑफ द साइकिल। थोड़े 4 स्टेप थे। अब क्या होगा? अब ये जो हीट इसने एक्सट्रैक्ट किया, रेफ्रिजरेंट ने हीट कहां से एक्सट्रैक्ट किया? इनसाइड चेम्बर से। देन दिस रेफ्रिजरेंट गोज आउट और वो डायरेक्ट जाएगा कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस करता है फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, हमको इसका फेस चेंज करना है, वापस से गैस को लाना है लिक्विड फॉर्म में। नंबर 2, इमेजिन जो रेफ्रिजरेंट चेंबर से बाहर आया, उसका जो टेम्परेचर है, राइट, उसका टेम्परेचर कितना होगा? मे बी 10 डिग्रीज, करेक्ट। बाहर का कितना है? मे बी 27 डिग्रीज, राइट। तो हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम सराउंडिंग टू द रेफ्रिजरेंट, लेकिन हमको तो ये हीट रिलीज करवाना है ना। जो हीट वो अंदर से लेके आया है, उसको रिलीज करवाना है, यहाँ तो उल्टा ही चालू हो जाएगा। तो हम जानबूझ के इंटेंशनली व्हाट वी डू इज वी कंप्रेस द गैस एडियाबैटिकली बाय पासिंग इट थ्रू कंप्रेसर। और एडियाबैटिक मतलब ये कि वी आर नॉट अलाउिंग द हीट टू एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। तो जो तीसरा स्टेप है, उसमें इंटेंशनली हमने इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस कर दिया, तो सबसे पहले गैस बन गया लिक्विड, क्योंकि कंप्रेशन करना मतलब प्रेशर इंक्रीज करना, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड बनेगा। और ऊपर से जो भी वर्क करोगे, कंप्रेशन अपने आप तो होता नहीं है, वर्क हैज टू बी डन, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इन दिस केस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और मोस्ट ऑफ द वर्क इस पूरे के पूरे साइकिल में सबसे ज्यादा काम कोई करता है तो वो है कंप्रेसर। तो बिकॉज यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो कंप्रेसर ने वर्क किया था सिस्टम पे, वो कहाँ गया? वो हीट में कन्वर्ट हो गया। और वो हीट किसने रख लिया? रेफ्रिजरेंट ने रख लिया। मतलब 2 चीजें हुए, कंप्रेसर ने एक तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया और रेफ्रिजरेंट को हीट अप कर दिया, जानबूझ के हीट अप कर दिया, इंटेंशनली हीटिंग होता है वो। अब हीटिंग होने की वजह से व्हाट हैपेंस इज रेफ्रिजरेंट इज एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। अब आप इसको पास करोगे किससे? ट्यूब से। और अभी है क्या? द थिंग इज रिमेंबर, अब रेफ्रिजरेंट बिकॉज ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन इज एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो हीट कहां से कहां फ्लो होगा? फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेशर कितना है? हायर प्रेशर है, लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि डायरेक्टली ओपन टू एयर है। आपके घर में भी या एक क्लासरूम में भी जो एसी लगा है, कंप्रेसर कहाँ होता है? कंप्रेसर कहाँ लगाते हो? डायरेक्टली बाहर। बाहर मतलब ओपन टू एयर, ओपन टू एयर मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है? हाई प्रेशर है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर है। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन रेफ्रिजरेंट इज बेसिकली गिविंग आउट हीट, क्योंकि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेशन के बाद वो हायर टेम्परेचर पे गया था। नाउ द हीट विल फ्लो फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू द सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, तो वॉल्यूम शुड ऑल्सो डिक्रीज। तो क्या होगा? कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन? आइसोबारिक। तो थर्ड स्टेप में कौन सा कंप्रेशन था? एडियाबैटिक। जो तीसरा स्टेप था दैट इज adiabatic compression. So the third step of this cycle is adiabatic compression.
Okay, now the refrigerant is passed through compressor which compresses it adiabatically, thus converting it into liquid, and heating it up, तो इसका हीटिंग भी हो गया और इसका फेस चेंज भी हो गया. देन द लास्ट स्टेप इज आइसोबारिक कंप्रेशन. फोर्थ स्टेप आइसोबारिक कंप्रेशन. Now the refrigerant is allowed to pass through cooling tube which is directly in contact with atmosphere. Now the refrigerant is passed through or is circulated through cooling tube which is directly in contact with atmosphere, अब क्या होगा, heat will flow from refrigerant to the atmosphere that is surrounding. So heat flows from refrigerant to the surroundings, मतलब atmosphere basically, and this is isobaric compression. क्योंकि हीट अगर फ्लो हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कहां से कहां गया, रेफ्रिजरेंट से सराउंडिंग में, तो टेम्परेचर किसका कम हुआ, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वॉल्यूम भी कम होगा. तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज आइसोबारिक कंप्रेशन. राइट, तो 4 स्टेप्स याद रखना. कौन सा 4 स्टेप? एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोबारिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड आइसोबारिक कंप्रेशन. बराबर. अब लेट अस सी परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. अब ये परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर क्यों चाहिए हमको? बहुत सिंपल सा रीजन है. फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू बाय अ रेफ्रिजरेटर, सपोज हमको एक फ्रिज खरीदना है, तो डेफिनेटली यू विल गो चेक. बहुत सारे ब्रांड्स है, अलग अलग कंपनीज होगा, अलग अलग कैपेसिटी भी होता है. छोटा फ्रिज होता है 6 लीटर का, 10 लीटर का, 12 लीटर का, 18 लीटर, तो कैपेसिटी भी होता है उसका. तो फॉर एग्जांपल मुझे 12 लीटर का रेफ्रिजरेटर आई वांट टू बाय, तो डेफिनेटली ऑलरेडी वी लिव इन इंडिया विच इज वेरी कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट. तो कोई अगर 9,999 में दे रहा है और सेम फीचर आपको 10,000 में मिल रहा है, 1 रुपी का डिफरेंस भी हम सोचेंगे, 1 रुपया बचता है ना हमारा. लेकिन लुक, द थिंग इज दैट इज नॉट द ओनली थिंग. आपको ये भी देखना है कि कौन सा रेफ्रिजरेटर कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके सेम कूलिंग इफेक्ट देगा. तो आपको पता कैसे लगेगा? तो उसके लिए होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परफॉर्मेंस फैक्टर, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर क्वालिटी फैक्टर या फिर क्यू वैल्यू. और इन केस ऑफ एयर कंडीशनर्स वहां पे रेटिंग होता है 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, सुना होगा. राइट, तो जितने ज्यादा स्टार है उसका मतलब वो उतना ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है टू गिव द सेम कूलिंग इफेक्ट. तो फॉर एग्जांपल इफ आई बाय 3 स्टार एयर कंडीशनर,
डेफिनेटली हमारे क्लासरूम में जो है दोज आर ऑल 3 स्टार, क्योंकि इसमें 5 स्टार बनता नहीं है, ये हाई कैपेसिटी है। इट इज इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर। इंडस्ट्रियल को आप बोलते हो हैवी ड्यूटी, 2.2 टन। तो 2.2 टन मतलब यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज द वॉल्यूम। 2.2 टन, जितना ज्यादा टन बोलोगे मतलब उतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा। बट इफ यू यूज अ नॉर्मल एयर कंडीशनर, क्योंकि रेफ्रिजरेशन मतलब एयर कंडीशनिंग सेम है, बोथ आर सेम, बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। डिफरेंस क्या है वो समझेगा आगे जाके। इफ यू बाय लेट अस से 1.5 टन का एसी, उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। जितना ज्यादा स्टार रेटिंग होगा उतना ज्यादा महंगा होगा, राइट। जितना कम स्टार रेटिंग होगा उतना ही सस्ता होगा। मतलब कूलिंग इफेक्ट तो सेम है, क्योंकि कैपेसिटी क्या है, सेम है, राइट। बट द पावर कंज्यूम्ड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस द सेम कूलिंग इफेक्ट इज डिफरेंट, राइट। तो सिमिलरली रेफ्रिजरेटर भी जब आप बाय करोगे तो कॉस्ट इज वन थिंग। दो अलग अलग कंपनी के रेफ्रिजरेटर है, दोनों का कॉस्टिंग सेम है, दोनों का कैपेसिटी सेम है, सब कुछ सेम है अपार्ट फ्रॉम डिजाइन पार्ट। लेकिन देन दे मे नॉट हैव द सेम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, देयर परफॉर्मेंस में वेरी। हो सकता है एक रेफ्रिजरेटर सेम परफॉर्मेंस देने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, या तो उसका परफॉर्मेंस फैक्टर ही अलग है, राइट। तो मे बी द फैक्टर इज डिफरेंट। तो जैसे आपको याद होगा, इफिशियंसी डिफाइन करते वक्त, efficiency is defined in case of heat engine, that was work output upon heat input। heat input क्या था, QH था, राइट। वर्क आउटपुट था और हीट इनपुट था QH। हीट वाज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन। कितना हीट एब्जॉर्ब किया था, QH। तो इनपुट कौन था, हीट था। उसका एक पार्ट कन्वर्ट हुआ था वर्क में, राइट। तो इफिशियंसी की वैल्यू यू कैन गेट मैक्सिमम दैट इज 1। और ये भी आइडियल इंजन होता है, ये प्रैक्टिकल इंजन होता ही नहीं है। तो आइडियल इंजन के केस में क्या है कि जितना भी हीट एब्जॉर्ब हुआ पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हुआ, वर्क में। तो आइडियल हीट इंजन के केस में हीट इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। क्यों, क्योंकि इफिशियंसी कितना है, 1। तो वर्क डन कितना होगा, QH। जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ पूरा का पूरा वर्क डन। तो अगर आप एक व्हीकल खरीदने जाते हो तो यू एक्सपेक्ट कि जो गाड़ी हम लेने जा रहे हैं उसका इफिशियंसी शुड बी नियर टू 1। प्रैक्टिकल हीट इंजन का इफिशियंसी हमेशा होता है लेस देन 1। अगर 0.9 इफिशियंसी है मतलब जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उसका 90% कन्वर्ट हुआ किसमें, वर्क में, राइट। तो इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। ये उल्टा है, इसको हम डिनोट करते हैं K से। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम डिनोट करेंगे K से। जैसे इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, वैसे K वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जितना ज्यादा K वैल्यू उतना ही परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज बेटर। मतलब उतना ही कम वर्क होगा टू प्रोड्यूस द सेम कूलिंग इफेक्ट। क्योंकि वर्क डन कौन करेगा, कंप्रेसर करेगा। कंप्रेसर अपने आप वर्क करता है क्या, नहीं करता है। वो क्या यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी। नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी वो चल ही रहा है, वो ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब वी विल डिफाइन दैट, हम डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए। थोड़े से प्रॉब्लम्स है यहाँ पे इस टॉपिक में, कंफ्यूजन बहुत होता है। नंबर 2, बुक टू बुक, बुक टू बुक फॉर्मूलाज आल्सो वेरी। तो हम देखते हैं उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे हम लोग। तो लेट अस टेक दिस एनर्जी फ्लो डायग्राम। और याद रखो, स्पेशली थर्मोडायनामिक्स में, ओवरऑल फिजिक्स में बट स्पेसिफिकली थर्मोडायनामिक्स में आपके पास एक सिंगल डायग्राम है एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो सबसे पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम। ये जो एनर्जी फ्लो डायग्राम है आपके पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम। तो ये जो एनर्जी फ्लो डायग्राम है ये किसको किसको रिलेट कर रहा है, बताओ। So from this energy flow diagram, we see that
energy flow diagram shows the relation between work done on the system and the amount of heat extracted or transferred from the colder region to the hotter region, right? So ये coefficient of performance या performance of a refrigerator क्या है? Before we go to that, सबसे पहले डायग्राम से क्या समझा? It is giving you relation between work done and heat extracted. So energy flow diagram shows the relation between what? Between work done and the amount of heat transferred transferred from the colder region to the hotter region, Yeah, the clear? Is this clear? Right? So, and what do you see from this? QC is the amount of heat extracted from colder region. W is the work done on the system. ये words are very important. Extracted मतलब absorbed, or by convention, heat absorbed. By convention, heat absorbed is taken to be positive. Work done on the gas is taken to be negative, and heat released is taken to be negative. Right? So in this case, let QC be the heat extracted. From the colder region. Therefore, QC is less than 0 or greater than 0? Greater than 0, because heat absorbed is taken to be positive. So greater than 0. याद रखना, it is greater than 0. And उसके बाद क्या था? W क्या है? Work done on the system. यहाँ पे system मतलब working substance on the system. Therefore, this work done will be taken to be negative. क्योंकि work done on the system हो, इसका मतलब negative work होता है वो. And QH क्या है? Be the heat released to the hotter region. Heat released to the hotter region. Now that clear? Heat release मतलब positive to negative. So QH will be taken to be less than 0. Clear यहाँ तक? अब from this energy flow diagram हमको एक इक्वेशन मिल सकता है, work done plus QC equal to QH. Work done plus QC equal to QH. So work done equal to QH minus QC. बराबर? क्लियर? टेक्स्ट बुक में या नोट्स में लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और वो क्या है वो भी समझ लेते हैं. और रिमेंबर दिस, इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो mod of W equal to mod of QH plus mod of QC. मॉड्यूलस मतलब टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज. अब हमने ये इक्वेशन कहाँ से बनाया? हमने ये इक्वेशन बनाया है कहाँ से बनाया हमने ये इक्वेशन? एनर्जी फ्लो डायग्राम. लेकिन इन नोट्स और इन टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड दे विल से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. पूरा डिटेल में समझाया नहीं, एक इक्वेशन लिख के छोड़ दिया. ऐसा लिखा है QH plus QC equal to W, ऐसा लिख के छोड़ दिया. ये आया कहाँ से? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q equal to delta U plus W. But remember, refrigerator is a heat engine operated in backward direction. मतलब हीट इंजन अगर साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करता है तो ये भी साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करता है, और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर ऑलवेज सेम. और क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो डेल्टा यू इज 0.
because there is no net change in internal energy. पूरे साइकिल में वर्किंग सब्सटेंस का जो इनिशियल स्टेट था वो वापस से कहाँ जा रहा है, उसी स्टेट पे जाता है। जब साइक्लिक प्रोसेस हो तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, मतलब ये कितना है, जीरो। तो क्या आया, Q इक्वल टू W, राइट। लेकिन Q दो टाइप के थे, एक था हीट एक्सट्रैक्टेड, एक था हीट रिलीज। तो इसलिए Q को क्या लिखा है, QH प्लस QC इक्वल टू W, राइट। तो यहाँ से आपको W मिल गया, QH प्लस QC। अब नाउ व्हाट दे विल डू इज, वो बोलेंगे बाय कन्वेंशन। देखिए कन्वेंशन हमने, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो QH कौन है, रिलीज है, मतलब कौन है, नेगेटिव है। QC कौन है, पॉजिटिव है। वर्क डन कौन है, नेगेटिव है, राइट। तो इसको, इस माइनस साइन को शिफ्ट कर दो, तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, यस। तो W क्या आया, QH माइनस QC। तो हमारा तो डायरेक्टली आ गया एनर्जी फ्लो डायग्राम से, QH माइनस QC, राइट। यहाँ तक क्लियर। तो आई विल अवॉइड टू यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं सीधा बोल दूंगा फ्रॉम एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो वी नो फ्रॉम एनर्जी फ्लो डायग्राम व्हाट वी हैव इज दिस, फ्रॉम energy flow diagram you will get W plus QC equal to QH and therefore W equal to QH minus QC। हमको यही चाहिए, हम इतना ही यूज करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब सेकेंड कंफ्यूजन, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, इसको हम लोग Q वैल्यू भी बोलते हैं। इन सम बुक्स they say quality factor is the ratio of, वही है जैसे वहां पे वर्क अपॉन हीट था, क्योंकि वहां पे वर्क आउटपुट था, हीट इनपुट था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हीट इज एक्सट्रैक्टेड एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क इज इनपुट, तो वर्क डन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और हीट एक्सट्रैक्टेड मतलब QC क्या आएगा, ऊपर आएगा। इन सम बुक ये ऐसा लिखते हैं, QH अपॉन W। वेल QH इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, क्योंकि रिमेंबर एफिशिएंसी हो, क्वालिटी फैक्टर हो, गेन हो, दे आर नॉर्मली डिफाइंड एज आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में कौन गया, देखो आउटपुट में कौन गया, QH। इनपुट में कौन था, W। तो ये भी बुक टू बुक वेरी करेगा, तो QH अपॉन W या फिर QC अपॉन W। आई विल स्टिक टू व्हाट योर टेक्स्ट बुक सेज। आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, QC अपॉन W है, तो हम इसको ही यूज करेंगे। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, इट इज अ रेशियो ऑफ QC अपॉन W। तो सबसे पहले द परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, द परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर is given by a factor, known as coefficient of performance, or quality factor or Q value, right। और ये जो है, it is a ratio of heat extracted to that of work done, so it is the ratio of heat extracted QC from the colder region to that of work done on the system, तो ये आ गया आपका Q वैल्यू, ओके। इसको डिनोट करते हो आप K से, K इक्वल टू
QC upon W. What is QC? तो QC, what is W? QH minus QC. राइट, ये यहाँ तक पक्का। तो ये आ गया आपका क्वालिटी फैक्टर या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर Q वैल्यू। डिनोट करते हो K से, लिखते हो Q। ओके, है ना, बराबर ना, बोलते हैं उसको Q वैल्यू और डिनोट करते हैं K से। देन फॉर अ हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, ये जो K है इसका वैल्यू आता है रफली 5, approximately K value for a household refrigerator. Why I am saying household refrigerator? Because it is not similar to commercial refrigerators. Commercial में बहुत सारे टाइप आते हैं। एक तो आपको पता होगा, when you go to buy आइसक्रीम्स, उसमें एक डीप स्टोरेज होता है जिसको डीप फ्रिज बोलते हो आप। डेफिनेटली इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन। हाउस होल्ड में हमारे पास एक छोटा ही डीप फ्रिज होता है जिसमें आपको आइस बनाना है, अदरवाइज बाकी सारे कंपार्टमेंट्स में इतना स्ट्रॉन्ग रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं होती, राइट। लेकिन कमर्शियल रेफ्रिजरेटर दे हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको, एज आई टोल्ड यू, आइसक्रीम मतलब यू हैव टू कीप दैट इन सॉलिड फॉर्म, उसको मेल्ट होने नहीं दे सकते, तो वो स्ट्रॉन्गर रेफ्रिजरेटर होगा। अनदर एग्जांपल, इफ यू नो, ये जो फ्रेंचाइज होता है ना, डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड, सम XYZ वड़ा पाव, XYZ वड़ा पाव, ऐसा कुछ जो होते हैं फ्रेंचाइज, अभी तो नहीं पता, लेकिन मोस्टली जो इनका बेसिक इंग्रेडिएंट होता है ना, द बेसिक फूड दे पुट इनसाइड, रॉ मटेरियल, वो यहाँ नहीं बनता। उनका एक सेंटर होता है, द नियरेस्ट इज नासिक, वहां से वो सप्लाई होता है। बेस्ट एग्जाम्पल, उससे भी अच्छा एग्जाम्पल, मिल्क प्रोडक्ट्स है ना, अमूल का दूध, अमूल का पनीर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यहाँ तो बनेगा नहीं। द नियरेस्ट इज आनंद विच इज इन गुजरात, यू शुड नो। अब वहां बन गया, और आपको पता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स को यू हैव टू मेंटेन एट अ कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर। तो जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसके लिए भी हमको कोल्ड स्टोरेज लगता है। तो वो बड़े बड़े ट्रक्स बनाते हैं जिसमें दे मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दोज रेफ्रिजरेटर्स आर डिफरेंट देन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। इवन जिनका फैमिली बैकग्राउंड अगर फार्मिंग है, तो फॉर ऑल्सो फॉर सम फ्यू थिंग्स यू नीड कोल्ड स्टोरेजेस। कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा तो खराब हो जाएगा सब। तो वो अलग टाइप का रेफ्रिजरेशन है, अलग टाइप मतलब के वैल्यू आर डिफरेंट। तो ऐसे के वैल्यू फॉर रेफ्रिजरेटर इज 5, दैट इज हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, नॉर्मल घर में जो यूज करते हो वो। यहाँ तक क्लियर? तो नाउ वी कैन मूव अहेड टू एयर कंडीशनर्स। अब याद रखना, एयर कंडीशनर्स आर नथिंग बट रेफ्रिजरेटर्स। तो द वर्किंग of air conditioner and refrigerator is exactly the same. तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नंबर 1, स्पेस। इट डिफर्स इन द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस टू बी कूल्ड। एयर कंडीशनर्स में हम लोगों को बड़े बड़े रूम्स, बड़े बड़े क्लासरूम्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े आउटलेट्स को कूल करना होता है। रेफ्रिजरेटर में छोटे चेम्बर्स होते हैं कूलिंग के लिए। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सो इट डिफर्स इन द साइज, मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्पेस टू बी कूल्ड। Number 2, if you see that block diagram, ये इसमें कूलिंग ट्यूब का जो पार्ट चेंबर के इनसाइड था, जिस चेंबर को कूल करना है, उसको आपने बोला था कूलिंग कॉइल। इसी कूलिंग कॉइल को हम लोग बोलते हैं इवापोरेटर कॉइल इन केस ऑफ एयर कंडीशनर। अब इमेजिन, एयर कंडीशनर लगाया है तो डेफिनेटली आपको अंदर का रीजन को कोल्ड करना है कंपेयर टू आउटसाइड, राइट। तो ये जो कूलिंग कॉइल है वो कहाँ होना चाहिए? इट शुड बी इनसाइड, और इसको नाम क्या दिया था? इवापोरेटर कॉइल। सो इन केस ऑफ एयर कंडीशनर्स, इवापोरेटर कॉइल्स आर इनसाइड द स्पेस दैट इज टू बी कूल्ड। ये जो एसी यूनिट है ना, इसको अभी खोल के देखोगे तो अंदर आपको एक कॉइल दिखेगा, एंड दैट कॉइल इज
evaporator coil, it is nothing but a part of cooling tube. सिर्फ इसको evaporator coil क्यों बोला, क्योंकि अंदर रेफ्रिजरेंट का फॉर्म क्या था, गैस था, मतलब इवापोरेशन हुआ होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज evaporator coil. So remember difference number 2, evaporator coil is inside the space that is to be cooled, right? Difference number 3, जैसे रेफ्रिजरेटर में एक सिंगल यूनिट होता है, कूलिंग कॉइल का सिंगल यूनिट होता है, कंप्रेसर भी उसी में होता है, ना. अगर आप रेफ्रिजरेटर को देखोगे, यू बेसिकली लैक प्रैक्टिकल नॉलेज. साइंस में अच्छा करना है तो वो कंडीशन ही है, यू हैव टू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज. अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि रेफ्रिजरेटर जाके खोल के देखो, बट एटलीस्ट रेफ्रिजरेटर को जब मूव करके देखोगे पीछे से, तो ऐसा सिस्टम आपको दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, राइट. तो यू मस्ट रिमेंबर, ये आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो ऑल्सो, ऐसा है, इस केस में होता क्या है. सबसे नीचे का बॉक्स सबसे छोटा होता है, इफ यू चेक, अभी देखोगे ना, नीचे का जो बॉक्स होता है मोस्टली इन मोस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर स्मॉलर. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कूलिंग ट्यूब ऐसा है, इधर ही कंप्रेसर है, तो ये सिंगल यूनिट है, एक ही सिंगल यूनिट है, उसमें से कूलिंग कॉइल अंदर की तरफ है, बाकी का कॉइल बाहर की तरफ है, कंप्रेसर इज आल्सो आउटसाइड. बट इन केस ऑफ एयर कंडीशनर, कंप्रेसर इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट यूनिट. और हम क्या करते हैं, एसी अंदर लगा दिया, कंप्रेसर टेरिस पे लगा के आए, करते हैं ना ऐसा, right? So the compressor is outside the space, मतलब it is directly in contact with atmosphere. Difference number 2 क्या था, evaporator coil is inside. Difference number 3, compressor is outside. Outside मतलब it is a separate unit. It is outside the space that is to be cooled. यहाँ तक clear? तो ये याद रहेगा. Will you remember this? Correct? So both are same, the working is same. It differs in the volume of the space to be cooled. Evaporator coil is inside the space that is to be cooled. Compressor is outside. Difference number 4. अभी होता क्या है, also remember, पहले वर्किंग समझ लो. ये जो evaporator coil था, evaporator coil के डायरेक्टली इन कांटेक्ट में जो एयर है, दैट इज टू बी कूल्ड. एसी का कूलिंग कैसे होता है, हीट एक्सट्रैक्शन. रेफ्रिजरेटर का कूलिंग कैसे होता है, हीट एक्सट्रैक्शन. रेफ्रिजरेटर में भी हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एसी में भी हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है. रेफ्रिजरेटर में कहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, जो भी सब्सटेंसेस थे, राइट, फ्रूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एसी में हीट कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, एयर से. जो भी इवेपोरेटर कॉइल के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर है, वो हायर टेम्परेचर पे है. और ये जो इवेपोरेटर कॉइल है, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो लोअर टेम्परेचर पे है. तो हीट कहाँ से ट्रांसफर होगा, फ्रॉम एयर टू रेफ्रिजरेंट, राइट. तो किसका कूलिंग कर रहे हो, एयर का कूलिंग कर रहे हो. तो इन केस ऑफ एयर कंडीशनर, एयर heat from the air is extracted by the refrigerant. Clear? अब imagine मैंने जहां एसी लगा के रखा है, यहाँ पे बस उतना ही ऊपर का पार्ट कूल हुआ, हाँ कुछ फायदा होगा. तो उसके अंदर एक इनबिल्ट फैन यूनिट होना चाहिए. फैन क्या करता है, एयर को थ्रो करता है. वो विल यू फाइंड दैट इन रेफ्रिजरेटर, नो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में हमको एयर को थ्रो करने की जरूरत ही नहीं है. जिसको हम अब ब्लोअर बोलते हो ना, इसमें फैन स्पीड भी होता है. इफ यू सी रिमोट कंट्रोल कभी उठा के देखना है एसी का, उस पर फैन स्पीड भी लिखा होता है, राइट. तो पॉइंट नंबर 4, द एयर विच इज इन डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद इवेपोरेटर कॉइल इज कूल्ड डाउन बाय एक्सट्रैक्टिंग द हीट, एंड दिस कोल्ड एयर इज थ्रोन अवे विद द हेल्प ऑफ अ फैन यूनिट. तो उसके अंदर ही इनबिल्ट फैन भी होता है. यहाँ तक क्लियर? तो इतने ही डिफरेंसेस है. वॉल्यूम मतलब स्पेस, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस. evaporator coil is inside the space, compressor is outside the space. Air which is in directly in contact with evaporator coil is cooled down,
इट इज थ्रोन अवे विद द हेल्प ऑफ अ इनबिल्ट फैन यूनिट, करेक्ट। ये 5, बाकी तो सेम था। अगर बाकी सब सेम था तो फिर वो जो हमने फॉर्मूला बनाया, कौन सा फॉर्मूला बनाया, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, करेक्ट, राइट। तो व्हाट वाज दैट, दैट वाज QC अपॉन W, राइट, क्लियर। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड टू दैट ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। अब एसी के केस में एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, द रेट ऑफ कूलिंग। यू रिमेंबर रेट ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, याद है? व्हाट इज रेट ऑफ कूलिंग? व्हाट इज रेट ऑफ कूलिंग? व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ कूलिंग? व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन? पोजीशन अपॉन टाइम क्या है वो? वेलोसिटी है। रेट ऑफ कूलिंग मतलब हीट अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। व्हाट इज एनर्जी अपॉन टाइम? व्हाट इज वर्क अपॉन टाइम? पावर, एग्जैक्टली। तो रिमेंबर दिस, याद रखना। एयर कंडीशन के केस में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम दिस स्पेस। रेफ्रिजरेशन में उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? वाई? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो आपने सब्सटेंसेस रखे हैं, नॉर्मली दिन भर में वही रहने वाला है उसके अंदर। एट द मोस्ट आप एक दो बार डोर ओपन करके एक दो चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, एक्स्ट्रा रखोगे, बाहर निकालोगे। पर एक रूम में, एक क्लासरूम में, इमेजिन एक शोरूम में, हर एक आवर में कितने लोग आते जाते हैं, राइट। so there's a huge exchange of heat. That is why in case of air conditioner हमको K वैल्यू इस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हाउ मच हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितना हीट एक्सट्रैक्शन हुआ, राइट। अगर आपने न्यूमरेटर को डिवाइड बाय टाइम किया है तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट टाइम, इसको डिनोट करते हो H से। है ये भी एनर्जी अपॉन टाइम। इसको पावर नहीं बोलते लेकिन, क्योंकि पावर कब बोलते हो, वर्क अपॉन टाइम। पावर मतलब मैकेनिकल वर्क अपॉन टाइम। ये हीट था, ये मैकेनिकल वर्क है क्या? नहीं। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। और नीचे कौन है, पावर, तो H अपॉन P। तो K फॉर air conditioner is the ratio of rate of cooling to that of power delivered to the system, क्योंकि यहाँ पे work is done on the system है, तो power delivered to the system हो गया। Is this clear? पक्का पक्का, sure, right? Then remember this, for air conditioners the K value is around 3, that is around 3, right? तो इसकी value 3 आती है। Clear यहाँ तक? One last topic which is completely theoretical, there are no equations involved, which are called as heat pumps. अब इंडिया में तो जरूरत पड़ती नहीं है उसकी, बट व्हेन यू गो अब्रॉड, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज जहाँ एक्सट्रीम ठंड होती है, अभी हमारे यहाँ पे अभी ठंड आने वाला है ना, एंड रिमेम्बर इंडिया इज ऑल्सो इन नदर्न हेमिस्फीयर। हमारे यहाँ ठंड मतलब यूरोप में भी ठंड, राइट। साउथ के लिए उल्टा है, हमारे यहाँ पे विंटर तो वहां पे समर है, तो साउथ पोल का अलग होता है सिस्टम, राइट। तो वहां पे एयर कंडीशनर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे रूम हीटर्स लगते हैं, उल्टा है वो। क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर गोज टू -10, -5, -8, -15 में भी। तो हमको उल्टा काम करना है। यहाँ पे आप एक स्पेस से, एक क्लासरूम से, एक रूम से हीट को एक्सट्रैक्ट करके सराउंडिंग में छोड़ रहे थे, राइट। वहां पे उल्टा है, बाहर का हीट एक्सट्रैक्ट करके रूम के अंदर लाना है, उसको आप बोलते हो हीट पंप। सो हीट पंप्स आर नथिंग बट एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर विच वर्क इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मतलब उल्टा काम है वो, राइट। बाहर का हीट उठा के अंदर, करेक्ट। तो फिर एवापोरेटर कॉइल कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड। कंप्रेसर कहाँ होना चाहिए, इनसाइड। हीट एक्सट्रैक्शन कहाँ से हो रहा है, एयर से ही हो रहा है, लेकिन कौन से एयर से, आउटसाइड एयर से। तो हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आउटसाइड एयर
and it is thrown inside. Now the clear. So this is how a whole building or a house is heated. So heat pumps are nothing but refrigerators or air conditioners which work inside out. Evaporator coil in this case is outside. Heat from outside air is extracted and it is thrown inside. Is this clear? Clear? Pakka? Okay, so that's it for today.